આપ જોઈ રહ્યા છો કે ટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી તમારો અવાજમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે રેસ્ટા। આમ તો ઘણી બધી ચર્ચા વિષય પર કરતા જ હોય છે, પરંતુ આજનો વિષય કંઈક અલગ જોવા પડતો હોય છે। સુરક્ષા પર રાજનીતિ આ મુદ્દો આજે લાવવાનો પાછળનું મુખ્ય કારણ એટલે છે કે અત્યારે વિપક્ષ અને પક્ષના આમને સામને આકરા પ્રહારો થઈ રહ્યા છે। તો અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગ સેક્ટરમાં ભારતીય અને ચીની સૈનિકો વચ્ચેની અથડામણ પર હવે રાજકારણ ચાલુ છે। આ મામલે મોદી સરકાર પર આકરા પ્રહાર કરતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે ચીન આપણા સૈનિકોને મારી રહ્યું છે। રાહુલ ગાંધીએ તે પણ જણાવ્યું છે કે હવે જે ચીની કબજા કરી રહ્યા છે આપણી જમીન પર, ત્યારે સરકાર તરફથી કોઈ પગલાં શા માટે નથી લેવામાં આવ્યા। તેમણે તો તે પણ આક્ષેપ કર્યા છે કે અત્યાર સુધી આ મુદ્દે ચર્ચા શા માટે ન કરાઈ। ત્યારે ભાજપે વળતો જવાબ પણ આપ્યો છે। હવે રાહુલ ગાંધીની સરખામણી જયચંદ સાથે કરી છે। ભાજપે રાહુલ ગાંધીની સરખામણી જયચંદ સાથે કેમ કરી છે તે પણ સવાલ ત્યારથી જ ઊભો થઈ ગયો છે। અને આપ આ જે દ્રશ્યો જોઈ શકો છો તેમાં આ મહત્વનું એક પાસું દેખાઈ રહ્યું છે। તે લેટર છે રમેશ જે કોંગ્રેસના પ્રવક્તા છે તેમણે તે લેટરમાં 7 સવાલ પૂછ્યા છે। આજે આ લેટર ખૂબ જ વાયરલ થતો જોવા મળ્યો હતો। અધીર રંજને તો ઘણા બધા આકરા પ્રહારોએ કર્યા છે। અમિત શાહે પણ આ જ મુદ્દે આજે ચર્ચા પણ કરી હતી। તેમણે જણાવ્યું હતું કે જે કોંગ્રેસ તરફથી પ્રહારો કરવામાં આવ્યા છે તે વાતને સખત તેઓ વખોડી રહ્યા છે। સેનાનું મનોબળ તોડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। કોંગ્રેસ પાર્ટી આવું શા માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે તે સવાલ ઊભો થઈ રહ્યો છે। અને જયરામ રમેશે જે 7 સવાલ પૂછ્યા છે તેમાં ઘણા બધા સવાલો ઉકળતા દેખાઈ રહ્યા છે। મલ્લિકાર્જુન ખડગેની વાત કરીએ તો તેમણે પણ સવાલ ઉઠાવ્યો છે। તેમણે તો સંસદમાં કહ્યું છે કે કોઈ પણ ચર્ચા શા માટે ચીનને લઈને નથી કરવામાં આવી, આ સવાલ તેમણે કર્યા છે। અને આ બધા જ સમાચાર જ્યારથી વ્યક્ત થઈ ગયા છે તેના કારણે સુરક્ષા પર રાજનીતિ કેમ તે સવાલ ત્યાંથી જ વહેતો થઈ ગયો છે। ત્યારે આ નેતાઓ શું કહી રહ્યા છે, સૌપ્રથમ આવો સાંભળીએ તેમને તેમના નિવેદનો શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળીએ। दौड़ाया वहां से, डर के भागे, ये ताकत है हमारी सेना की। और आप कहते हैं कि हमारे जवान पिट रहे हैं राहुल गांधी। भारत की जीत में आपको दर्द होता है, ऐसा क्यों है? और आपको यह बताना भी आवश्यक है किस तरह से बार बार यह कार्य किया जाता है। इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि देश के सामने सच्चाई रखें और राहुल गांधी का ये जो जयचंद वाला चरित्र है उसको उजागर किया जाए। कल हमने जो नोटिस कल भी दी थी और आज भी दिए हैं कि चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं। और इसीलिए हम पहले से हमारी कोशिश रही है कि हमको पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है। और सदन को बहुत से चीज़ें जो डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया वो हमारे पास चंद जो इंफॉर्मेशंस हैं, जिस जगह जो पहले खाली थी अब वहाँ पर ब्रिज बन गए हैं,
और बहुत से कॉलेजेस बन गए हैं, आज कोई इस पर नोटिस मकान नहीं है, बन गए आप कोई हैं। नहीं, और नहीं, इसके बाद इस पे कोई नहीं, चर्चा की जाए नहीं, प्लीज नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सर। कोई सर, नोटिस आज this is- लिस्टेड नहीं है सर, इसके बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान सर, दे चुके हैं। आप we are for the country, we are with army। और माननीय ब्रिजलाल जी 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बनाने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। आर्मी को हेड कौन करते हैं? हिंदुस्तान की आर्मी मोदी जी की आर्मी नहीं है, सारे हिंदुस्तान वासियों की आर्मी होते हैं। हमारा सरहद को रक्षा करने वाले हमारा वीर जवान होते हैं, जिसके लिए हम अहंकार महसूस करते हुए गर्व है, हमारे नाज है हिंदुस्तान की आर्मी। हिंदुस्तान की आर्मी हमारा नाज है, अहंकार है, गर्व है। ये झूठ मूठ कांग्रेस पार्टी को और राहुल जी को हमारे फौजों की खिलाफत करने वाला एक आदमी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो। But you know, before I came to this press conference, I was having lunch with my friend here, and I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. ऐसे मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। विजयलक्ष्मी फ्रॉम इंडिया न्यूज, विजयलक्ष्मी माइक दीजिएगा विजयलक्ष्मी जी को। ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। राहुल जी, विजयलक्ष्मी इधर, राहुल जी मैं चाइना पर ही पूछना चाह रही अब आप पूछ रहे हैं चाइना पर? नहीं राहुल जी, हम पूछ रही है। नहीं मैं चाइना पर ही अब याद आया चाइना। अपनी बारी का इंतजार कर रही थी मैं, क्योंकि एक ऑर्डर है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि पार्लियामेंट में आप से मुलाकात नहीं हो पाती है। भारत जोड़ो यात्रा में आप हैं, आपकी पार्टी उठा रही है ये मसला। दौड़ाया वहां से, डर के भागे, ये ताकत है हमारी सेना की। और आप कहते हैं कि हमारे जवान पिट रहे हैं राहुल गांधी। भारत की जीत में आपको दर्द होता है, ऐसा क्यों है? और आपको यह बताना भी आवश्यक है किस तरह से बार बार यह कार्य किया जाता है। इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि देश के सामने सच्चाई रखें। और દર્શક મિત્રો, આપે દરેક નેતાઓના નિવેદન સાંભળ્યા, તેઓ શું કહેવા માંગે છે, તેઓના વક્તવ્યો સાંભળ્યા, કારણ કે અત્યારે તો આ ચીનના મુદ્દે ઘમાસાણ થઈ રહ્યો છે। મલ્લિકાર્જુન ખડગે વાકબાળ કરે છે અને સામે ભાજપ પણ વાક યુદ્ધ કરે છે। આજે આ જ ચર્ચા કરવા માટે અમારી સાથે જોડી ગયા છે લલનસિંહ, જેઓ રક્ષા વિશેષક છે, અને લલિત રાવલ, જેઓ નિવૃત્ત આર્મી। આ બંનેનું સ્વાગત છે। સૌપ્રથમ नमस्कार। ललन सिंह, आपके पास आवा मांगेश। ललन सिंह, क्या दिखता है सेना के शौर्य पर सियासत क्यों लगती है यहाँ पे? લલિત રાવલ, શું લાગે છે? हाँ जी, હવે આ એક ભારતીય ચીની સૈનિકો વચ્ચેની અથડામણ અને તેવા સમય બબાલ રાજકારણ ગરમાયું છે, વાક યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે આમને સામને।
ભારતીય સેના એ કોઈ પોલિટિકલ વિંગ નથી. આક્ષેપો અને ખોટા આરોપો ભારતીય સેના ઉપર મૂકવાનું રાજનીતિક દળોએ બંધ કરવું જોઈએ. ભારતીય સેના એ રાષ્ટ્ર માટે, રાષ્ટ્રની સરહદોની સાચવણી માટે, એની જાળવણી માટે અને એની રક્ષા કરવા માટે જોતરાયેલી છે. એવામાં જ્યારે આપણા રાજનેતાઓ કઠપૂંજિયા રાજનેતાઓ જ્યારે આપણી ફોજને આવી રીતે વખોડવાની અને અપખોડવાની અને એના ઉપર ખોટા આક્ષેપો મૂકવાના પગલાં ભરે છે, એ મારી દ્રષ્ટિએ ખૂબ વખોડવા લાયક છે. આવું કરવું જ ન જોઈએ. આજ ભારતીય સેના 1947 થી આજ દિન સુધી દરેક તબક્કે, દરેક મોરચે જીતતી આવી છે અને જોમ શોમ અને હોશ સાથે, સંપૂર્ણ તાકાત સાથે દુશ્મનો સાથે ટકરાતી આવી છે. પોતાની આવડત અને પોતાના સ્કિલ્સના આધારે ભલે સરકારે એમને શસ્ત્ર સરંજામ કે સુવિધાઓ પૂરી ન પાડી હોવા છતાં પણ ભૂતકાળથી અત્યાર સુધી આપણે સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ છીએ અને ભારતની સરહદોની સેવા કરતા આવ્યા છીએ. ખૂબ જડબાતોડ જવાબ દરેક વખતે આપણે આપ્યા છીએ. 1948માં આપણે કહું કાશ્મીરથી શરૂ કરીએ તો કાશ્મીરમાં જ્યારે પાકિસ્તાનનું સૈન્ય શ્રીનગર સુધી પહોંચી ગયું હતું ત્યારે આપણી સેનાએ તાબડતોબ એમને પાછા ઠેલતા અત્યારે આપણે જેને પીઓકેની બોર્ડર ગણીએ છીએ, એલઓસી, ત્યાં સુધી લઈ ગયા હતા. અને આપણા જ એ વખતના નેતાઓએ જે એ વખતે યુદ્ધ વિરામ ડિક્લેર કરી દીધો હતો, એક થોડી જ જહેમત બાકી હતી અને જેના કારણે આપણે આખું કાશ્મીર ગુમાવ્યું ત્યાંનું, એ પીઓકે જે આપણે ગણીએ છીએ આજે. એટલે એ રાજનેતાઓની ઉણપ અને એમની દ્રષ્ટિના કારણે આપણે લલિત રાવલ, જે નિવેદનો સામે આવી રહ્યા છે, આપને અટકાવીશ. જે નિવેદનો સામે આવ્યા છે, કયા નેતાએ શું કહ્યું છે, સૌપ્રથમ આપ તે પણ સાંભળી લો. દર્શક મિત્રો તો સાંભળ્યા છે, પરંતુ આપે તે નિવેદન નથી સાંભળ્યા. આપ નિવેદન સાંભળી લો, કારણ કે અલગ અલગ નેતાઓના આમને સામને આકરા પ્રહારો થઈ રહ્યા છે. दौड़ाया वहां से, डर के भागे, ये ताकत है हमारी सेना की. और आप कहते हैं कि हमारे जवान पिट रहे हैं राहुल गांधी. भारत की जीत में आपको दर्द होता है, ऐसा क्यों है? और आपको यह बताना भी आवश्यक है किस तरह से बार बार ये कार्य किया जाता है. इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि देश के सामने सच्चाई रखें और राहुल गांधी का ये जो जयचंद वाला चरित्र है उसको उजागर किया जाए. कल हमने जो नोटिस कल भी दी थी और आज भी दिए हैं कि चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं. और इसीलिए हम पहले से हमारी कोशिश रही है कि हमको पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है. और सदन को बहुत से चीज़ें जो डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया, वो हमारे पास चंद जो इंफॉर्मेशंस हैं, जिस जगह जो पहले खाली थी अब वहाँ पर ब्रिज बन गए हैं और बहुत से कॉलेजेस बन गए हैं, आज कोई इस पर नोटिस मकान बन गए हैं. नहीं, और इसके बाद इस पे कोई चर्चा की जाए. नहीं प्लीज, नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सर. दिस इज लिस्टेड नहीं है सर. इसके बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान दे चुके हैं. वी आर फॉर द कंट्री, वी आर विद आर्मी. और माननीय ब्रिजलाल जी प्लीज. 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया. चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय. और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है. भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया. आर्मी को हेट कौन करते हैं?
हिंदुस्तान की आर्मी मोदी जी की आर्मी नहीं है, सारे हिंदुस्तान वासियों की आर्मी होते हैं। हमारा सरहद को रक्षा करने वाले हमारा वीर जवान होते हैं, जिसके लिए हम अहंकार महसूस करते हुए गर्व है, हमारे नाज है हिंदुस्तान की आर्मी। हिंदुस्तान की आर्मी हमारा नाज है, अहंकार है, गर्व है। ये झूठ मूठ कांग्रेस पार्टी को और राहुल जी को हमारे फौजों की खिलाफत करने वाला एक आदमी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो। But you know, before I came to this press conference, I was having lunch with my friend here, and I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. ऐसे मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। विजयलक्ष्मी फ्रॉम इंडिया न्यूज, विजयलक्ष्मी माइक दीजिएगा विजयलक्ष्मी जी को। ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। राहुल जी, विजयलक्ष्मी इधर, राहुल जी मैं चाइना पर ही पूछना चाह रही हम बाबा पूछ रहे हैं चाइना पर। नहीं राहुल जी, हम पूछ रही है। नहीं मैं चाइना पर ही अब याद आया चाइना। अपनी बारी का इंतजार कर रही थी मैं, क्योंकि एक ऑर्डर है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि पार्लियामेंट में आप से मुलाकात नहीं हो पाती है, भारत जोड़ो यात्रा में आप हैं, आपकी पार्टी उठा रही है ये मसला। दौड़ाए वहां से, डर के भागे, ये ताकत है हमारी। ललन सिंह, आपको मेरी आवाज सुनाई देती है? आवाज आ रही है आपकी? जी। मेरी आवाज आ रही है क्या? या आपकी आवाज आती है। हाँ, चलिए बात कीजिए। ललन जी, सवाल ये है, सेना के शौर्य पर सियासत क्यों? सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत, अगर देखा जाए तो शर्मनाक और हमारे राजनीतिक दलों की गिलानी सी बात है। मैं ये मानता हूं कि जब बहुत साफ शब्दों में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हमारे रक्षा मंत्री ने स्पष्ट बयान दे दिया कि जो 300 पीएलए आए उनको तवांग के अंदर हमारी फौज ने बहुत जबरदस्त जज्बे के साथ उनको वापस कर दिया। उन्होंने बादलों की ओट में और मौसम की आड़ में इस इलाके में आकर हमारे भारतीय बॉर्डर आउटपोस्ट को छेड़खानी या एस्टेब्लिश को चेंज करना चाहते थे। बहुत साफ शब्दों में अगर इस तरह की पूरी बातें और आर्मी की औपचारिक जो बयान आई है उसमें सब कुछ साफ है। मैं ये समझता हूं अनावश्यक रूप से, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आपको ये जानकारी है कि एक दिन पहले हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने बहुत साफ लफ्जों में कहा है कि इस तरह की जो हरकतें हैं हर वर्ष 1-2 बार चीन के द्वारा होती हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, पूरा एलएसी आज लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हमारी भारतीय स्थल सेना और आसमानी इंडियन एयरफोर्स पूरी तौर पे चौकस है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसका खास कारण यह है कि अनावश्यक राजनीति करके हमारी जो फौज है उसके मनोबल को डिस्टर्ब करने वाली बात है। हमारी फौज पूरी तौर पे प्रोफेशनल है। हाई एल्टीट्यूड 17,000 फीट के ऊपर हमारी जो चौकसी है वो पूरी जबरदस्त है, लेकिन बेकार का इस तरह के चीनी शरारत पर जो इसकी पुरानी आदत है, 1962 से आज तक हमारे इलाके में ये लगातार घुसपैठ करने का, अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, लेकिन आज वो वर्तमान हालत बदल चुका है। भारत की जो सेना है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, चाहे वो अरुणाचल हो, सिक्किम का इलाका हो या मिडिल एलएसी का एरिया हो, पूरी तौर पे अपने आप में एकदम फुली डिप्लॉयड है। और यही कारण है कि तवांग के अंदर मैं बताना चाहता हूं कि ये वही जगह है जो 1962 में सबसे बड़े जत्थे को इस इलाके से घुसपैठ कराने की चीन ने कोशिश की थी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पूर्वोत्तर इलाके में ये एक ऐसा जगह है जहां भारत, भूटान और तिब्बत जो आज चीन के आधिपत्य में है,
वहां पे आने से वो पूरी तौर से, जिसको चिकन नेक बोलते हैं सेना के परिभाषा में, वो इलाके को वो पूरी तौर पे ऑब्जर्व और दबाव में रख सकता है। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि हमारी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बेहतर ढंग से पूरे इलाके को रसद, लॉजिस्टिक, फौज की रीइंफोर्समेंट के लिए बेहतर रोड की व्यवस्था और टनल और अप फ्रंट हाईवे लगातार जी तो उस पे काम चल रहा है। तो इस हालातों को देखते हुए जरूरत नहीं है कि इन बातों को सार्वजनिक किया जाए, और जितनी स्पष्ट शब्दों में इन्होंने बता दिया है हमारे रक्षा मंत्री ने, वो काफी है। और इस तरह का राजनीति करना हमारे तरफ से ये बेहतर नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, લલિત રાવલ આપની પાસે આવવા માંગે છે। એક બાજુ રાહુલ ગાંધીના આકરા પ્રહારો કે અત્યાર સુધી ત્યાં કંઈ પણ મુદ્દે ચર્ચા નથી કરવામાં આવી સંસદની અંદર, મીડિયાને પણ સવાલ પૂછવામાં આવ્યો કે અત્યાર સુધી તમે પણ શા માટે સવાલ ન ઉઠાવ્યો। ત્યારબાદ હવે સવાલ એ પણ થઈ રહ્યા છે કે હકીકતમાં ત્યાં થઈ શું રહ્યું છે જેના કારણે અત્યારે આ મુદ્દો લાવવામાં આવી રહ્યો છે। એવું લાગે છે કે 1962માં જે યુદ્ધ થયું હતું તેની અત્યારે યાદ આવી રહી છે લોકોને। 1962 યુદ્ધ વખતે આપણે 37,000 સ્ક્વેર કિલોમીટર જમીન એ વખતના આપણા રાજનેતાઓના પાપે ગુમાવી ચૂક્યા છીએ। એના કારણે આજ દિન સુધી એના વિરોધમાં કોઈ બોલ્યું નથી, એના બાબતે કંઈ નથી। પણ આપણી આ ફોજ, ડિફેન્સ ફોર્સિસ આજે આટલી નિષ્ઠાથી, આટલા સમર્પણદારથી પોતાની જાનનું બલિદાન કરવાની તૈયારી સાથે જ્યારે બોર્ડર ઉપર સજ્જ થઈને સરહદો ઉપર પ્રતિકાર કરતા ઊભા હોય, ચાહે તવાંગ હોય, ચાહે ડોકલામ હોય, ચાહે ગલવાન હોય, દરેક જગ્યાએ આપણે સૈનિક તેના દુશ્મનના સૈનિકોને તોડી નાખ્યા છે, વેરવિખેર કરી નાખ્યા છે, એમની ગરદનો તોડી નાખી છે આપણા નિહત્તા સૈનિકોએ। એટલે આટલું જોમ, આટલું શૌર્ય બતાવવા છતાં આપણા આજના જે તુચ્છ કક્ષાના વિધાનો આપતા નેતાઓ અને જે અવમાન, સૈન્યની અવમાનના કરતા નેતાઓ, મારી દ્રષ્ટિએ તો હું રાજઘાતી સમજું, રાષ્ટ્રઘાતી, કે આ ખરેખર એમને શોભા નથી આપતી। જે નેતાએ બોર્ડર જોઈ નથી, જે નેતાને મિલિટરીની ઓપરેશનની ABCDની ખબર નથી, એ બેઠા બેઠા મિલિટરીના ડિપ્લોયમેન્ટ વિશે વાતો કરવા, ઉછળી ઉછળીને બોલે, એનાથી વિશે શરમજનક શું છે? એવા નેતાઓની औकात નથી, એ લોકોની લાયકાત નથી કે મિલિટરીનું ડિપ્લોયમેન્ટ કયા તબક્કે થાય છે, કેવી સિક્રેસી વાપરવામાં આવે છે, કોના કોના લેવલ સુધી એ ઇન્ફોર્મેશન ફક્ત હોય છે। જાણ્યા સિવાય ખાલી ફક્ત ને ફક્ત વાણી વિલાસ કરી અને આપણી સેનાનું મનોબળ તોડવા માટે, આપણી દેશની શાખ ઘટાડવા માટે આ જે હરકતો કરી રહ્યા છે, મારી દ્રષ્ટિએ ખૂબ શરમજનક છે, ખૂબ ક્ષોભજનક છે અને ખૂબ વખોડવા લાયક છે મારી દ્રષ્ટિએ। लेला सिंह, भाजपा कह रहा है कि कांग्रेस को कह रहा है वो कि आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया है। ये क्या सजेस्ट करता है? कौन सी दिशा में ये सेंटेंस जा रहा है? क्या कमेंट्स है और आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? मैडम, अगर सच बात उन्होंने उजागर किया है, वो फौजी हैं, उन्होंने सच बताया है। मैं भी आपको बताता हूं, फौजी पर सवाल क्यों? मैं बता रहा हूं, फौजी होने के नाते मैं एक चीज साफ बोलना चाहता हूं। 1962 में 303 9.11 आउंस का डेड वेपन जिसको बोलते हैं, उससे हमारे बहादुर जवान और अफसरों ने लड़ाई लड़ी थी चीन से। लेकिन आज वर्तमान में हमारी जो स्थिति है इतनी जबरदस्त है कि चीन तवांग के एक्शन के बाद उसका पहला स्टेटमेंट आया था कि हालात सामान्य है, और उसने बाद में दोबारा बोला है कि हमारे इलाके में भारतीय सेना घुसपैठ कर चुकी थी। सोचिए हालात कितने बदल हो चुके। 1962 और आज का 2020 और 2022 का जो भारतीय सेना का बहादुरी और जज्बा। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जमीन से लेकर समुद्र तक चीन का लगभग 16 देशों के साथ उसके जमीनी विवाद हैं या समुद्री इलाके में विवाद हैं। यह चीन की पुरानी आदत है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चीन की जो चुनौती है वो गंभीर है, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि चीन के साथ जो हमारी चौकसी है, जो हमारी तैयारी है, अभी आपने देखा 2 दिन से लगातार युद्धाभ्यास हो रहे हैं। राफेल, सुखोई और मिराज और तरह से हमारी ड्रोन। और मैं आपको बताना चाहता हूं
कि चिकन नेक जिसको बोलते हैं, वहां हमारी ड्रोन की 2 यूनिटें एस्टेब्लिश की गई हैं। सैटेलाइट से पूरी उनके हालात, उनके डिफेंसिव और आक्रामक अगर कोई भी एक्शन होता है तो हमारे नजरों में होता है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अरुणाचल का तवांग सेक्टर जो भारत और चीन के बीच में सैनिक झड़प हुआ, उसमें बहादुरी के साथ हमारे लोगों ने उनको तुरंत वापस किया। लेकिन जब ये बात आती है, एक किसी नेता के द्वारा बोली जाती है कि साहब हमारे लोगों को पीटा जा रहा है, तो बहुत शर्मनाक स्थिति पैदा होता है। दुनिया इस चीज को गलत मानती है, लेकिन समझ में नहीं आता कि हमारे कुछ नेताओं को इस तरह के बोली पर कंट्रोल क्यों नहीं होता, और वो क्या चाहते हैं। राजनीति अलग चीज है, वो संविधान ने हमें प्रदत्त किया है पावर, मूलभूत सिद्धांत है व्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन यहाँ पे ये सामरिक बातों में जबरदस्ती घुसपैठ करके और नेताओं के द्वारा माहौल को केवल खराब करने की कोशिश हो रही है। मैं ये भी कहता हूं कि अगर बिलावल भुट्टो हमारे 130 करोड़ के भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अपशब्द और अमर्यादा की बात किया है, तो मेरा एक प्रश्न है बिलावल भुट्टो से कि अगर हमारे प्रधानमंत्री आरएसएस के सदस्य हैं, तो तुम किसके सदस्य हो? तुम जैश के हो, लश्कर के हो, या और किसी आतंकवादी संगठन के हो? आज उनकी एक मंत्री जो साजिया में उन्होंने कहा है कि भारत के ऊपर एटम बम इस्तेमाल करो। उनको ये पता नहीं है कि अगर एटम बम के ऊपर स्विच ऑन करते ही पूरा पाकिस्तान सेकंडों में साफ हो जाएगा। सच्चाई यह है कि भारत की जो स्थिति है, यूक्रेन, रूस या अमेरिका, सबके सामने एक विश्वास वाला है, और हमारे के प्रधानमंत्री से लगातार वार्ता टेलीफोनिक हो रही है। भारत G20 का अध्यक्ष बना है। जी सबका तकलीफ। ललन सिंह, आपके पास आती हूँ। जी લલિત રાવલ, આપે નિવેદન સાંભળ્યું તેમનું, શું કહેવા માંગો છો? આપના મંતવ્ય પણ રજૂ કરો, કારણ કે તેઓના મંતવ્ય પણ ખૂબ જ મહત્વના હતા. તેમણે તો છેલ્લે આજે પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રીને લઈને પણ તેમણે જણાવી દીધું. પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી બિલાવલ ભુટ્ટો છે ને, જી, એ પાકિસ્તાનનો રાજનૈતિક પપ્પુ છે, અને એવી જ રીતે આપણા ભારતનો પણ રાજનૈતિક પપ્પુ છે. એ બંનેના વિધાનો ઉપર કોઈ લક્ષ્ય આપતું નથી, અને એ દરેક એને હસી મજાકમાં જ લઈ લે છે. પણ જ્યારે એક સિરિયસ કક્ષાના નેતાઓ ભલે ટટપુંજ્યા, પણ એ જ્યારે ફૌજ વિરુદ્ધનું ભાષણ આપે છે, ફૌજના વિરુદ્ધમાં બોલે છે, ભારતની ફૌજને હતોત્સાહિત કરવાની વાતો કરે છે, એ મારી દ્રષ્ટિએ ખૂબ વખોડવા લાયક છે. આજ આપણે તમે જુઓ, ડોકલામમાં મારીને તોડી નાખ્યા હતા. આપણે ગલવાનમાં ચીની સૈનિકોને ગરદનો 100થી વધુની તોડી નાખી છે. આવા સમયે પણ જ્યારે આ લોકો વાણી વિલાસ કરતા હોય, તો મને એક પ્રશ્ન પૂછવાનું મન થાય કે તો તમે ત્યાં ડોકલામ વખતે ત્યાં એના ચાઇનીઝ એમ્બેસેડર સાથે બેસી અને કયા MOU સાઇન કર્યા હતા? તમે એવી શું રકમ મેળવી હતી એ નેતાઓ પાસે? લલિત રાવલ, આપને જણાવી દઉં કે જયરામ રમેશે આજે કોંગ્રેસના જે એમનું પેજ હતું ટ્વિટર પર, લલિત રાવલ, તમે તે ટ્વિટર જોઈ લો. 7 સવાલ છે તેમાં PMO ફંડને લઈને તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો છે. ત્રીજો ચોથો સવાલ છે તેમાં જોઈ લો. તે સવાલની અંદર તેમણે આ સવાલ પૂછ્યો હતો, એટલે કોણ કોનું અપમાન કરે છે તે ત્યાંથી જ સવાલ ઉભો થઈ રહ્યો છે. PMO ફંડની વાત જુદી છે, આ પર્સનલ પોતાના ફંડમાં આપેલી વસ્તુને ઉજાગર કરવાની જરૂર છે. MOU કઈ પાર્ટીએ સાઇન કર્યું છે? કઈ રાજનીતિક ભારતની રાજનીતિક પાર્ટીએ પણ કોંગ્રેસ તો સરકારને આડે હાથ લે છે આ મુદ્દે, સંસદમાં સવાલ ઉઠાવે છે. એ જાણવું જરૂરી છે અત્યારે, અને એના કારણે આ બધું ઊભી થઈ રહી છે. એમના જે તો રાહુલ ગાંધી આ સવાલ પૂછવો જોઈએ, આપનું એવું કહેવું છે? લલિત રાવલ, રાહુલ ગાંધી આ સવાલ પૂછવો જોઈએ. માછલા ધોવાય એને ટાળવા માટે આજે સેના ઉપર એ માછલા ધોઈ રહ્યા છે. હું મારું એમ કેવું છું કે તમે રાજનૈતિક પક્ષો જેટલા તમારે એકબીજા ઉપર માછલા ધોવા હોય, કાદવ ઉછાળવા હોય તે ઉછાળો, પણ ફૌજને શા માટે એમાં ઘસીટો છો? ફૌજનું મનોબળ શા માટે ઘટાડો છો? આજે ફૌજનો સૈનિક -35 ડિગ્રીમાં જે સરહદ ઉપર બરફ વચ્ચે ઉભો છે અને પોતાના શૌર્યથી, પોતાની ખુમારીથી ભારત દેશની રક્ષા કરી રહ્યો છે, ત્યારે તમે એના ઉપર તમે કાદવ ઉછાળવાની વાત કરો છો. એના ડિપ્લોયમેન્ટ
ઉપર તમે પ્રશ્નો ઉભા કરો છો આ ખૂબ શરમજનક છે મારી દ્રષ્ટિએ અમે રાજનીતિ નથી હોતા ભારતીય ફોજ ઇટ્સ એ પોલિટિકલ વિંગ એટલે એના ઉપર તમે એને પોલિટિક્સમાં ન ઘુસેડો જો ઘુસેડશો તો એવા ઘણા બધા પ્રશ્નો છે એ બીજા રાજનૈતિક પ્રશ્નો તમને પૂછશે પણ એ પ્રશ્નો પૂછવાની અમને કોઈ નથી એમાં વિરોધ પણ તમે ફોજને એમાં સામેલ ન કરો ફોજના કાર્યકારી ઉપર ફોજના ડિપ્લોયમેન્ટ ઉપર ફોજની એબિલિટી ઉપર તમે આવા પ્રશ્ન ન ઉઠાવો કે આપણી ફોજ આટલી હિંમતથી આટલી જનૂનથી ઝઝુમીને એના દુશ્મનના સૈનિકોને તોડી ફોડી નાખે છે એવા સમયે તમે જ્યારે વિધાન આપો છો કે આપણી ભારતની ફોજ અરુણાચલમાં માર ખાય છે शर्मजनक बाबत है। ललन सिंह, यहाँ पे आपने सुना होगा, गुजराती में होगा, आपके साथ आऊंगी मैं, पर आपको एक जरूरी बात भी बतानी है, उस पर नजर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। जी तो भारतीय અને ચીની સૈનિકો વચ્ચે અથડામણ પર રાજકારણ થઈ રહ્યું છે। રાહુલ ગાંધીએ મોદી સરકાર પર આકરા પ્રહાર પણ કર્યા છે। હવે ભાજપે રાહુલ ગાંધીને પલટવારમાં જવાબ આપ્યો છે। પહેલા રાહુલ ગાંધી આકરા પ્રહાર કર્યા ત્યારે ભાજપે પણ રાહુલ ગાંધીની સરખામણી જૈતન સાથે કરી છે। હવે જૈતન સાથે શા માટે કરી તે પર સવાલ કોંગ્રેસે ભાજપને સવાલ કર્યો છે કે શા માટે સીમાને લઈને ચર્ચા નહીં। સૌપ્રથમ જાણીએ કે ગૌરવ ભાટિયા શું કહે છે। લलन सिंह, आप सुनेगा जरूर, हिंदी लैंग्वेज की आपको पता चलेगा। दौड़ाया वहां से, डर के भागे, ये ताकत है हमारी सेना की। और आप कहते हैं कि हमारे जवान पिट रहे हैं राहुल गांधी। भारत की जीत में आपको दर्द होता है, ऐसा क्यों है? और आपको यह बताना भी आवश्यक है किस तरह से बार बार यह कार्य किया जाता है। इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि देश के सामने सच्चाई रखें और राहुल गांधी का ये जो जयचंद वाला चरित्र है उसको उजागर किया जाए। कल हमने जो नोटिस कल भी दी थी और आज भी दिए हैं कि चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं। और इसीलिए हम पहले से हमारी कोशिश रही है कि हमको पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है। और सदन को बहुत से चीजें जो डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया वो हमारे पास चंद जो इंफॉर्मेशंस हैं, जिस जगह जो पहले खाली थी अब वहाँ पर ब्रिज बन गए हैं और बहुत से कॉलेजेस बन गए हैं, आज कोई इस पर नोटिस मकान बन गए हैं। नहीं, अब इसके बाद इस पे कोई चर्चा की जाए। नहीं प्लीज, नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सर। कोई सर, नोटिस आज लिस्टेड नहीं है सर, इसके बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान दे चुके हैं। we are for the country, we are with army। और माननीय ब्रिजलाल जी प्लीज। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। आर्मी को हेड कौन करते हैं? हिंदुस्तान की आर्मी मोदी जी की आर्मी नहीं है, सारे हिंदुस्तान वासियों की आर्मी होते हैं। हमारा सरहद को रक्षा करने वाले हमारा वीर जवान होते हैं, जिसके लिए हम अहंकार महसूस करते हुए गर्व है, हमारे नाज है। हिंदुस्तान का हमारा नाज है, अहंकार है, गर्व है। ये झूठ मूठ कांग्रेस पार्टी को और
राहुल जी को हमारे फौजों की खिलाफत करने वाला एक आदमी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो। But you know, before I came to this press conference, I was having lunch with my friend here, and I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. I said मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। सिंह, आपके पास आती हूँ। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि सरकार मेन टॉपिक पर फोकस क्यों नहीं करती, क्योंकि राहुल गांधी ने तो ऐसा कहा है कि सरकार मेन टॉपिक पर फोकस नहीं करती, इसलिए ये सवाल वहां से आता है। आप क्या कहना चाहते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? साफ है कि स्पष्ट शब्दों में बताया जा रहा है, आर्मी के औपचारिक बयान से रक्षा मंत्री जो कि देश के सबसे सिक्योरिटी के मतलब उच्चतम स्थान के लोग हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बता दिया। फिर कैसे कोई नेता बोल सकता है कि आप असमंजस में देश को रखा है? सेना पर सवाल, ये देश के लिए उबाल वाली स्थिति हो रही है, एकदम राजनीति हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक रिटायर्ड कमांडेंट रहा हूं। मुझे पता है कि जो सीमा चाहे एलएसी हो या एलएसी हो, वहां पे इस तरह का अगर अतिक्रमण और घुसपैठ की कोशिश होती है तो ये अस्थायी होती है। आपने सुना होगा आज 2 दिनों से एक इंफॉर्मेशन सैटेलाइट और सूचना तंत्र का कि चीन एक बड़ा साजिश फोटोग्राफी का कर रहा है। वो इस अपने भारत के इलाके में थोड़े देर के लिए किसी मौके की तलाश में रहता है और फोटोग्राफ अपने पेट्रोलिंग का लेकर बाद में वो वापस जाता है और वो पूरी दुनिया को दिखाता है कि हम भारत के इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ये इलाका हमारा है। इस तरह की सूचना वार अभी चीन के द्वारा हो रही है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए भारत भी पूरी तौर पे अपने एक्शन में है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर सभी चीजों को बता दी जाए कि हमारे रोड में कैसे काम चल रहे हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहां टनल बना रहा है, नेशनल फ्रंट के ऊपर कौन सा टनल तैयार हो गया है, तो उससे हमारी जो सिक्योरिटी है वो डाउटफुल हो जाएगी। और चीन जो लगातार हमारे ऊपर नजर रखता है वो हमारे लिए हानिकारक होगा। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रश्न पूछे गए हैं राहुल गांधी जी का, वो एक तरह का मैं नहीं मानता कि वो सही है। ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि आप किस आधार पर ये बोल रहे हैं कि हमारे जवानों को लगातार पीटा जा रहा है। ये जो शब्द का चयन आपने किया है वो पूरे तौर पे गलत है। मैं ये बताना चाहता हूं कि भुट्टो के बिगड़ी बोल पर भारत ने पाकिस्तान को पूरी तौर पे सुरक्षा परिषद में पहले ही उनको आईना दिखा दिया है। अब इस तरह की बातों से और खड़गे साहब या जयराम रमेश लगातार अनावश्यक रूप से अगर देखा जाए तो एक तरह का देश के लिए अहितकर कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, एज ए सुरक्षा जानकार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 62 में हुआ उसका कष्ट हम अभी भी झेल रहे हैं। जैसा कि हमारे एक महोदय ने गुजराती में बहुत फौजी ने साफ बताया है कि हमारी स्थिति पहले 62 में बहुत शर्मनाक रही है, लेकिन इस बात को हम नहीं बोलना चाहते। ललन सिंह नेहरू जी को याद करते हैं, जब ये मुद्दा आया तभी तक, ये जब टॉपिक आया तब नेहरू जी को भी याद करता है। आप कृष्ण मेनन को भी याद कीजिए। जनरल कॉल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दिल्ली से चाइना और भारत की भाजपा कह रही कि ये तो वहां पे उन्होंने नहीं अच्छा किया था, तब तक कोई उनका तो वहां पे रिलेशन था, ये कहते हैं। बताना चाहता हूं, हाँ, नेहरू जी ने
मैं नहीं कहता कि क्या क्या सुरक्षा परिषद में चीन को मौका दिया, एक दूसरा उन्होंने, मैं आपको किताबों में लिखी हुई बात बता रहा हूं कि लिखा गया कि जब तिब्बत को चीन ने ले लिया है, सच्चाई क्या तो है वहां पे ललन हमारी- सिंह, सच्चाई क्या है वो बताइए। सच्चाई एकदम साफ है। अगर तिब्बत को जिस टाइम जो चीन है वो कब्जा कर रहा था, तो भारत को उस समय सशक्त होकर ऐसा नहीं करने देना चाहिए था। उनके जो एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं किया था, क्यों नहीं किया था वहां पे? वो वही हिंदी चीनी भाई भाई था उनका नारा, हाँ, हिंदी चीनी हाँ, भाई भाई था, वो भाई भाई हाँ, करने के हाँ, चक्कर में। हाँ, और हम 1971 का ये मुद्दा है वहां से चलता हुआ। 71 पाकिस्तान के साथ था जी। जब पाकिस्तान 71 में हमारी भारत की फौज और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने विजय दिवस मनाया 2 दिन पहले, तो इसकी तकलीफ ही बिलाल को लगा। इनके नाना बहुत आंखों से पानी रो रो कर पूरी दुनिया को दिखाया था, और आज वही हो रहा है। बिलाल भुट्टो जिस तरह की अमर्यादित बात किया है, उसको लगता है कि चीन का सहारा मिलेगा, ओआईसी का हेल्प मिलेगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं ना ओआईसी आएगा ना चीन आएगा। चीन तो अभी 16 देशों के दबाव में है, ताइवान और कई देशों के साथ वो परेशानी में है, और अमेरिका लगातार कह रहा है कि हम भारत के साथ हैं। ललन सिंह, सवाल ये है अब भारत क्या करेगा, उसका नेक्स्ट क्या होगा, ये सवाल है, क्योंकि ये तो मुद्दा है ही, बहुत साफ है। पर उसके बाद में अब क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान फॉर इट? राइट, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। अभी तक तो हम रक्षात्मक कार्रवाई करते रहे 62 से और अभी तक, लेकिन अभी हमारी जो पॉलिसी है, हमारी रक्षा की जो सोच है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब आक्रामकता के साथ हमारी जो तैनाती और सुरक्षा के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये जो 2 दिन का युद्धाभ्यास एयरफोर्स का हो रहा है, यही एक तरह का अटैकिंग मूड से अब रक्षात्मक हम लोगों ने सोच छोड़ दिया। अब चीन के ऊपर तुम अगर तवांग में कोशिश करोगे तो हम आपको लद्दाख के पैंगोंग में करेंगे। अब इस तरह की हालात हम लोगों ने शुरू कर दिए और आज इसकी जरूरत है। यही रक्षात्मक करने से जो चीन है उसका मन बड़ा हुआ है, 2 कदम आगे आता है और फिर पीछे खींचता है और हम लोगों को बेचैन करता है, केवल भारत को नहीं। ललन सिंह, ये सवाल था सड़क बनाने का, वो क्या था? बहुत अच्छा आपने पूछा। ये रोड से जो बीआरओ बना रही है, खास करके पूर्वोत्तर सीमा में, इसी का तकलीफ इसको बहुत है। अभी एक फ्रंट हाईवे बन रहा है, जिसको बनने के बाद 9 किलोमीटर उस बॉर्डर में और भी नजदीकी आ जाएगी। हमारी जो रीइंफोर्समेंट है, हमारे टैंक तोप जो हैं, चाहे वो कितनी भी बर्फ पड़े, जैसा साहब ने बताया, -25 अब शुरू हो चुका है। बर्फ गिरते हैं तो हमारी रीइंफोर्समेंट नहीं होती, जरूरत के अनुसार रसद नहीं पहुंच पाता, हमारे हथियारों का खेप नहीं पहुंचता, वो सब बहुत तेजी से और पूरी सेफ तरीके से जाएगी। इसका जानकारी चीन को हो चुका है और इसीलिए चीन ने अरुणाचल को 15 इलाके का नाम चेंज किया है। जी। लेकिन उसके नाम चेंज करने ललन से सिंह, आपके अब पास कुछ नहीं आती हूँ, होगा। आपके पास आती हूँ, पहले इनका भी आवाज सुन ले। લલિત રાવલ, લલન સિંહનું કહેવું છે કે ચીન ફોટો પાડીને જાય છે, એટલે ચીનના જે સૈનિકો છે તે ફોટો પાડે છે ને પછી જતા રહે છે, એટલે કે બેકફૂટ જતા રહે છે। પછી એક વિવાદ સામે આવ્યો હતો અને કોંગ્રેસ તરફથી કહેવામાં આવતું હતું કે આપણો હિસ્સો પણ જે હિન્દુસ્તાનનો છે તે ચીન તરફ છે અને ચીન તરફથી રસ્તાઓ બનાવવામાં આવે છે, તેમ છતાંય ત્યાં કોઈ પગલાં નથી, એટલે સીધું નિશાન કોના તરફ તે પણ સવાલ ઉભા થઈ રહ્યા છે। શું કોંગ્રેસે આપની સેના પર વિશ્વાસ નથી, ભરોસો નથી, મદાર નથી તેમને? આ સવાલો અહીંયાથી ઉભા થઈ રહ્યા છે। ખરેખર અત્યારે રાજકારણનો મુદ્દો આ લેવાઈ રહ્યો છે। સૌથી પહેલી વાત તો આપણી ભારત અને તિબેટની બોર્ડર, ચાઇના સાથે જી। આપણી બોર્ડર જ નથી। આ તિબ્બતને જ્યારે એને હથિયાવી લીધું ચાઇનાએ, ત્યાર પછી આપણી ચાઇના ઇન્ડો ચાઇના બોર્ડર થઈ અને જી। તે પણ ફિક્સ નથી થઈ, ઇટ્સ એ પરપેચ્યુઅલ વન। મેકમોહન લાઈન જે જી। છે એ અંદાજે છે, આપણે માનીએ છીએ અહીંયા સુધી છે, એ લોકો માને છે અહીંયા સુધી છે, એનો જ વિખવાદ છે અને એ વિખવાદને આજ દિન સુધી ચાઇના
ટાળવા કે ખાળવા કે એના ઉપર કંઈ પણ ત્યારે નહેરુજી સંશોધન મળવા તો કરી ગયા અથવા હતા, અમલ કરવા. નહેરુજી મળવા પણ ગયા હતા, ત્યાંના પણ અહીંયા મેઇન જે વ્યક્તિઓ હતા તેઓ અહીંયા ભારતમાં આવી પણ પહોંચ્યા હતા. હજી સુધી તે તો નહેરુજીએ રસપ્રદ ખેલ જોવા પડે છે. નહેરુજીએ ફક્ત હિન્દી ચાઇની ભાઈના સૂત્રથી ભારત દેશને નુકસાન પૂર્વકના તો પછી અત્યારે આ સૂત્ર કેમ ઉલટી ગંગામાં? બાકી આ સૂત્ર કેમ ઉલટી ગંગામાં? મારી વાત સાંભળો. આપણે 2013 સુધીનો ઇતિહાસ આખો લઈએ ને તો આપણી પાસે મિલિટરી ઓપરેશનને લગતા કોઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નહોતા, રોડ નહોતા, કોઈ પુલો એટલે નહોતા. કોંગ્રેસ આપણે જ્યારે હતી ત્યારે કોઈ જ પગલાં નહીં. ખચ્ચરો ઉપર આપણો સામાન લઈ ગયા છીએ. છેલ્લા 8 વર્ષમાં આ નવી સરકારે આવી અને ભારતની સેનાને પૂરતું મનોબળ અને પૂરતા સંસાધનો અને પૂરતું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પૂરું પાડ્યું છે. એ માટે 100% અમને ગર્વ છે. એટલે કોંગ્રેસ તરફથી કોઈ આર્મી માટે વિચારસરણી નથી રાખવામાં આવી, આપનું એ કહેવું છે? એમની વિચારસરણી એવી હતી કે નહેરુજી તો એમ કહેતા કે આપણે ભારતને હથિયારો આપવાની જરૂર શું છે, આપણા લશ્કરને હથિયારો આપવાની સુદ્ધા જરૂર નહોતી. આપણા ડિફેન્સ મિનિસ્ટર જે AK એન્થોની સાહેબનું વિધાન તમે સાંભળી લો કે આપણે રોડ બોર્ડ બનાવીને શું કરવાનું છે, આપણે ઉપરથી ચાઇના આવીને લઈ જશે આપણા રોડો. આવી મનોવૃત્તિથી પીડાતા આ લોકો આટલા વર્ષો સુધી ભારતીય સેનાને એનાથી વંચિત રાખ્યું. આ સરકારે આવ્યા પછી એટલું ખૂબ સારું કામ કર્યું છે કે આપણું રોડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એટલું સરસ, સરળ અને સુગમ થઈ ગયું કે આપણે છેક છેલ્લી પોસ્ટ સુધી આપણો વ્યવહાર, આપણી સામગ્રી, આપણું સંસાધનો બધું લઈને પહોંચાડી શકીએ એમ છીએ. ખૂબ સહુલિયત, ખૂબ એ થઈ છે અને એના કારણે ચીનના પેટમાં તેલ રેડાય છે. અને એનું એવું તો શું ગઠબંધન ભારતની એ રાજનીતિક પાર્ટી સાથે થયું છે કે જ્યારે ચાઇના ઉપર આવો માર પડે છે, ચાઇનાના સામે ભેખડા ભળાવવાની આપણી તૈયારી જ્યારે જુએ છે ત્યારે એમને પણ રાહુલ ગાંધી એમ કહે છે કે ચાઇના તરફથી એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે, એમનું મંતવ્ય છે કે ચાઇના અત્યારે ભલે શાંત તમને દેખાતું હોય, અંદરો અંદર ત્યાં અત્યારે બધું ઘડાઈ રહ્યું છે, પરંતુ હજી સુધી તેમ છતાંય સરકાર કોઈ પગલાં નથી રહેતી. આ નિવેદન તેમના છે, આ જે નિશાન તમને ટાંક્યું છે હકીકતમાં એ આપના રાહુલ ગાંધીજી ખૂબ તેમનું મંતવ્ય છે પર્સનલ, અમારી ચેનલનું નથી. પણ ખૂબ જ્ઞાન હશે અને દીર્ઘ દ્રષ્ટા હશે એટલે એમને કદાચ ખબર પડી ગઈ છે કે ચાઇનામાં અત્યારે યુદ્ધની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. પણ એ યુદ્ધની તૈયારીઓ થવાથી આપણને શું ફરક પડે છે? ભારતીય સેના 24 કલાક 24/7/365 એટલે તેમને આ સંસદની અંદર મુદ્દો લેવો જ ન જોઈએ, તમારું એવું કહેવું છે? કારણ કે સંસદમાં મલ્લિકાર્જુન ખડગે જે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ છે તેમણે તો કહ્યું છે કે અમારે આ મુદ્દે ચર્ચા જ નથી કરવા દેવામાં આવતી. ચાહે એ પાકિસ્તાનનો પપ્પુ હોય કે ઇન્ડિયાનો પપ્પુ હોય, એના ઉપર કોઈ લક્ષ આપવાનું કોઈ પણ વ્યક્તિના ઉપર ટીકા ટિપ્પણી ન કરીએ તો સારું રહેશે. ટિપ્પણી નહીં, આજે ભારતીય કોઈ વ્યક્તિને એવી રીતે તો ન દર્શાવે, કારણ કે દરેક વ્યક્તિને એક ગરિમા હશે ને કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમ પર તો જરાય નહીં, કારણ કે અહીંયા અસ્મિતા જળવાય છે ને અહીંયા ગરિમા જળવાય છે. તેના આધીન ભારતીય સેના જે માર ખાઈ રહી છે એવું વિધાન આપીને ભારતીય સેનાને નાલેશી ભરી સ્થિતિમાં મૂક્યું છે, એનો અમને ગુસ્સો છે. એક સારા નેતા તરીકે ઘણા બધાનું અમને ખૂબ માન છે, પણ જે નેતા ભારતીય સેનાની આવી બદબોઈ કરતો હોય અને જાણતો હોવા છતાં પણ આવી બદબોઈ કરે તો એ નેતા ઉપર ગુસ્સો ના આવે તો બીજું શું આવે? આપ કહો. जी ललन सिंह जी मैडम, आपके पास आती हूँ. एक चीज बताऊं. जी मैडम, देखिए यहाँ पे सिचुएशन सच का क्या है. पुल, संपर्क और जो रीइंफोर्समेंट के लिए जो सुविधाएं हैं वो भारत पूरी तौर पे तेजी से बना रहा है जी. इसको सार्वत्रिक नहीं किया जाता. चीन ने भी बहुत तैयारी की, बॉर्डर के ऊपर LAC का गांव को बसाना शुरू किया, तो भारत बैठा हुआ नहीं था, वो अपने कामों में पूरी तौर पे तत्परता से लगा हुआ था. यही कारण है कि इतनी बड़ी चीन में हलचल मची हुई है. पहले ये नहीं होता था, लेकिन अब ये बहुत. अभी आप देखिए हमारे गृह मंत्री शिलोंग में पहुंचे हैं, इस काउंसिल जो पूर्वोत्तर का है उसकी बैठक हो रही है. केवल यहाँ राजनीति और भौगोलिक बात नहीं है, जो शिलोंग में जो हमारे गृह मंत्री और बाद में कल प्रधानमंत्री जा रहे हैं, इन सभी का मतलब है कि पूर्वोत्तर जो सबसे खतरनाक सिचुएशन बनाने के मूड में चीन की PLA है, चीन के
जिनपिंग साहब के निर्देशन पे उसको हर तरह से दबाव में रखने का, वहां के लोगों को एक मतलब मोटिवेशन करने का, उनके नेताओं के बीच, उनके राज्यों के बीच हर तरह की समस्याओं का निपटारा के लिए नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जगह है जहां पे पहले हर वक्त केवल बंद ही रहता था, लेकिन आज वो हालत मैडम नहीं है। तो मैं सब मिला के ये कहना चाहता हूं कि साजिया मर्री जो पाकिस्तान की मंत्री है, उसने बोला कि हमारे पास एटम बम है। उनको ये पता ही नहीं है कि एटम बम क्या होता है। न्यूक्लियर देश दुनिया में कितने हैं? अगर 5 न्यूक्लियर देश है तो पाकिस्तान के भारत पास क्या ही होते हैं क्या? किसी और के पास नहीं होंगे? हाँ, और न्यूक्लियर बम अगर करना होता एक्शन जी। तो अभी तक पुतिन साहब यूक्रेन के ऊपर कर देते। उसके आगे होने वाले हालात के पार जी, पूरी जी। तौर पे सोचना पड़ता है। तो मैं एक चीज बताता हूँ राहुल ललन जी सिंह, या जी बोला जाए, टाइम कम होता है हाँ, हमारे ठीक पास, इसलिए आपको यहाँ पे स्टॉप करना चाहती हूँ। धन्यवाद, बहुत आप धन्यवाद मैडम। हमारे साथ यहाँ पे आए। લલિત રાવલ, આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે। નમસ્કાર નમસ્કાર। મારું એક જ નાનકડું સૂચન, ચોક્કસથી સંભળાઈ લો ચોક્કસથી, એક જ ભારતીય મિનિટ। રાજનૈતિકોને મારું એક જ વિનંતી, નમ્ર વિનંતી જી, જી, જી। કે મહેરબાની કરીને ફોજને તમારા પોલિટિક્સમાં ન ઘુસેડો। ચોક્કસથી। ફોજનું મનોબળ, એનો ઉત્સાહ જાળવી રાખો। ચોક્કસથી, एकदम सही, बहुत सही। બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે। थैंक यू मैडम। તો દર્શક મિત્રો, આપે પણ સાંભળ્યું નમસ્કાર। કે અત્યારે ભારતીય સૈનિકો અને ચીની સૈનિકોનું અથડામણને લઈને રાજકારણ રમાઈ રહ્યું છે। જો કે આને લઈને રાજકારણ શા માટે રમાઈ રહ્યું છે તે સવાલ અત્યારે એટલા માટે જ લેવામાં આવ્યો હતો કે સુરક્ષા પર રાજનીતિ ન થવી જોઈએ। આર્મી જે રીતે કામ કરે છે, તાડ હોય, તડકો હોય, ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય છે, દિવસ રાત તેઓ ખડે પગે રહેશે ને, તેના જ કારણે કહેવામાં આવે છે કે તેમને તો 100 સલામી ઓછી પડે છે। જ્યારે બોર્ડર પર ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ કરવામાં આવે છે ત્યારે ખ્યાલ આવે છે કે ત્યાં કેવી પરિસ્થિતિમાં તેઓ જડબાતોડ જવાબ આપે છે। સામે સૈનિકો હોય છે અને તેમને કડકમાં કડક સજા આપવા માટે તેઓ તૈયાર હોય છે। અને આવનારા સમયમાં પણ ચીનના સૈનિકો જ્યારે જ્યારે ભારત સૈનિકોની સામે લાલા કરશે ત્યારે ભારતીય સૈનિકો તેમને જવાબ અચૂકપણે આપશે। અત્યારે મને રજા આપશો। આપ જોતા રહો KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી, સમસ્યા તમારી, ખબર અમારી। નમસ્કાર।